اسلام آباد کا غدار اب پابند سلاسل تھا، مگر شاہویز کے لیے آرام ابھی دور تھا۔ کرنل ارشد نے اسے ایک بند کمرے میں بلایا۔ وہاں کی دیواروں پر بحیرہ عرب کا نقشہ تھا۔ شاہویز، دشمن نے اب نیا کھیل شروع کیا ہے۔ وہ اب گولیوں سے نہیں، وائرس سے لڑیں گے۔ ہمارے ساحل سے دور ایک گمنام جزیرہ ہے، جسے نقشوں پر شیطان کی آنکھ کہتے ہیں۔ وہاں دشمن نے ایک خفیہ لیبارٹری بنائی ہے، جہاں ایک مہلک حیاتیاتی ہتھیار تیار ہو رہا۔ اگر وہ وائرس ہمارے شہروں میں پھیل گیا تو اسپتال بھر جائیں گے اور ملک مفلوج ہوگا۔ شاہویز نے خاموشی سے نقشے کا جائزہ لیا۔ وہ جزیرہ بلند چٹانوں اور شارک سے گھرا تھا۔ وہاں پہنچنا کسی خودکشی سے کم نہ تھا۔ مگر عقاب سرحد کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسے اس بار ایک خاص ڈائیونگ سوٹ دیا گیا اور ایک ایسی گن جو پانی کے اندر چل سکے۔ اس کا مشن اس لیب کو تباہ کرنا تھا اور اس وائرس کا اینٹیڈوٹ حاصل کرنا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک آبدوز روانہ ہوئی۔ شاہویز اس کے چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنی رائفل کے پرزے صاف کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ملک کے لاکھوں معصوم چہرے تھے، جن کی زندگی اب اس کے اس مشن سے جڑی تھی۔ آبدوز جزیرے سے 2 کلومیٹر دور رک گئی۔ شاہویز نے اپنا ماسک پہنا اور پانی میں اترا۔ سمندر کی گہرائی میں مکمل خاموشی اور اندھیرا۔ صرف اس کے سانس لینے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنی واٹر جیٹ مشین کے ذریعے آگے بڑھا۔ جزیرے کے گرد دشمن نے سینسرز لگائے تھے، جو کسی بھی دھاتی چیز کی آہٹ پکڑ لیتے۔ شاہویز نے مشین بند کی اور خود تیرنے لگا۔ اس نے چٹانوں کے درمیان سے راستہ بنایا۔ اوپر سے دشمن کی سرچ لائٹس پانی کو چیر رہی تھیں۔ وہ ایک غار کے راستے جزیرے کے اندر داخل ہوا۔ وہاں سے ایک خفیہ سیڑھی اوپر کی طرف جاتی تھی۔ شاہویز نے گیلے کپڑے بدلے اور پوزیشن لی۔ سامنے ایک جدید سٹیل کی عمارت کھڑی تھی، جس کے گرد مسلح گارڈز کا سخت پہرا تھا۔ شاہویز نے اپنی سنائپر رائفل سنبھالی۔ اب اس نے لیب کے مین کنٹرول ٹاور کو دیکھا۔ وہاں ایک سائنسدان اور 2 فوجی کھڑے تھے۔ وہ کسی خاص کنٹینر کو منتقل کر رہے تھے۔ شاہویز نے اپنی سانسوں کو ترتیب دیا۔ فاصلہ صرف 400 میٹر کا تھا۔ وہاں اس نے سائلنسر لگی رائفل سے فائر کیا۔ ٹاور کا گارڈ بغیر آواز کیے نیچے گرا۔ شاہویز سائے کی طرح باڑ کاٹ کر اندر داخل ہوا۔ اسے اب لیب کے مین سرور تک پہنچنا تھا۔ لیب کے اندر کا درجہ حرارت بہت کم تھا۔ ہر طرف سفید لباس میں ملبوس لوگ تھے۔ شاہویز نے ایک گارڈ کو خاموشی سے دبوچا۔ اس کی وردی پہن کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہاں اسے وہ شیشے کے برتن نظر آئے، جن کے اندر سبز رنگ کا مائع چمک رہا تھا۔ یہی وہ زہریلا تحفہ تھا جو دشمن نے تیار کیا۔ شاہویز نے اپنے بیگ سے ٹائم بم نکالے۔ وہ انہیں ریفریجریشن سسٹم کے پاس لگانے لگا تاکہ دھماکے سے وائرس خود بخود ختم ہو جائے۔ سسپنس اس وقت بڑھا جب ایک آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا کوڈ بتاؤ۔ شاہویز نے مڑ کر دیکھا تو ایک افسر کھڑا تھا۔ شاہویز نے کوئی جواب دینے کے بجائے بجلی کی تیزی سے اس کے جبڑے پر وار کیا۔ افسر وہیں ڈھیر ہوا، مگر الارم بج اٹھا۔ پوری لیب میں اب سرخ روشنیاں گھومنے لگی۔ دشمن کے کمانڈوز اب ہر طرف سے آ رہے تھے۔ شاہویز نے اپنی خودکار گن نکالی اور فائرنگ کی۔ لیب کی راہداریوں میں اب گولیوں کا شور تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے مین ہال تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں اسے وہ اینٹیڈوٹ کا کیس نظر آیا۔ اس نے شیشہ توڑ کر کیس اپنے بیگ میں ڈالا۔ اب اسے یہاں سے زندہ باہر نکلنا تھا۔ دشمن نے تمام ایگزٹ دروازے بند کر دیے۔ شاہویز نے ایک گیس سلنڈر پر فائر کیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دیوار گر گئی۔ وہ آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر نکلا۔ باہر اب بارش شروع ہو چکی تھی اور طوفان تھا۔ شاہویز جزیرے کی بلند چوٹی کی طرف بھاگا۔ پیچھے دشمن کی گاڑیاں اور کتے لگے تھے۔ شاہویز نے چوٹی کے کنارے پر پہنچ کر دیکھا۔ نیچے 100 فٹ گہرا سمندر اور نوکیلی چٹانیں تھیں۔ پیچھے سے دشمن نے اسے گھیر لیا تھا۔ اب ہتھیار ڈال دو شاہویز، تم اب کہیں نہیں جا سکتے۔ دشمن کے لیڈر نے ہنستے ہوئے اپنی گن تانی۔ شاہویز نے ایک نظر اپنے ملک کے نقشے پر ڈالی اور ایک گہرا سانس لے کر پیچھے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ فضا میں کسی عقاب کی طرح تیرتا ہوا نیچے گرا۔ کیا شاہویز ان چٹانوں سے بچ پائے گا؟ داستان ہند کی یہ 8ویں قسط یہاں رکی۔ شاہویز اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ بیگ میں وہ قیمتی اینٹیڈوٹ موجود ہے جس پر کروڑوں لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سمندر کی لہریں اب اسے نگلنے کے لیے تیار ہیں اور دشمن اب بھی اوپر سے فائرنگ کر رہا ہے۔ کیا عقاب ایک بار پھر بلندیوں پر اڑے گا یا سمندر کی گہرائی کے ٹھنڈے پانی نے شاہویز کا استقبال کیا؟ وہ گہرائی میں اترا جیسے کوئی پتھر گرا ہو۔ اوپر سے دشمن کی گولیاں پانی کی سطح کو چیر رہی تھیں۔ شاہویز نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھا۔
उसके पास ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर मौजूद था। उसने बैग को मजबूती से थामा जिसमें एंटीडोट था। पानी के अंदर अंधेरा था और सामने नोकीली चट्टानें। उसने अपनी वाटर जेट मशीन दोबारा ऑन की। वो मछली की तरह तेजी से गहराई की तरफ बढ़ा। दुश्मन की सर्च लाइट्स अब भी उसे ढूंढ रही थी। अचानक शाहवेज को एक नई आहट महसूस हुई। पानी के अंदर दुश्मन की दो गोताखोर टीमें आ रही थीं। उनके पास जदीद हारपून गन्स थीं। शाहवेज ने एक बड़ी चट्टान के पीछे पनाह ली। उसने अपनी अंडर वाटर पिस्तौल निकाली और निशाना लिया। पहला वार हुआ और दुश्मन का एक गोताखोर साकत हुआ। पानी में अब खून के सुर्ख बादल बन रहे थे, जिसकी बूंदें समंदर के शिकारियों को मुतवज्जे किया। शाहवेज ने देखा कि दूर से कई शार्क मछलियां आ रही थीं। अब उसे दुश्मन और फितरत दोनों से एक साथ लड़ना था। उसने तेजी से अपनी पोजीशन बदली और गार में घुसा। शार्क मछलियों ने दुश्मन के बाकी गोताखोरों पर हमला किया। अफरातफरी का फायदा उठाकर शाहवेज वहां से निकल गया। इसे अब उस मकाम तक पहुंचना था जहां आबदोज मौजूद थी, मगर दुश्मन ने जजीरे के गिर्द समंदरी बारूदी सुरंगें बिछा दी। शाहवेज के पास वक्त बहुत कम और खतरा बहुत ज्यादा था। उसने अपने सोनार डिवाइस पर नजर डाली। हर तरफ सुर्ख नुक्ते चमक रहे थे जो बारूद की निशानी थी। उसने बहुत एहतियात से उनके दरमियान से रास्ता बनाया। एक गलती और वो हमेशा के लिए समंदर की नजर हो जाता। वो अब खुले समंदर में पहुंच चुका था, जहां लहरें ऊंची थी। आबदोज का सिग्नल अब उसके करीब आने लगा था, मगर दुश्मन की गश्ती कश्तियां अब भी ऊपर मंडला रही थीं। शाहवेज ने एक खाली लकड़ी के तख्ते का सहारा लिया। उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला और फिजा का जायजा लिया। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और बारिश तेज थी। अचानक एक बड़ी लहर ने उसे तख्ते से अलग कर दिया। वो समंदर के थपेड़ों में अकेला लड़ने लगा। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी और जिस्म शल हो रहा, मगर उसके बैग में छुपा एंटीडोट उसे याद दिलाता रहा। उसने दूरे उफुक पर आबदोज का पेरिस्कोप देखा। वो जानता था कि यही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। उसने अपने पास मौजूद इमरजेंसी लाइट रोशन की। आबदोज के अमले ने उसे देख लिया और उसकी तरफ बढ़े। शाहवेज ने अपनी पूरी ताकत जमा की और तेजी से तेरा। इसी लम्हे दुश्मन की एक गश्ती कश्ती उसके करीब आई। उन्होंने शाहवेज पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां उसके कानों के पास से गुजर रही थीं। शाहवेज ने बैग को सीने से लगाया और गोता मारा। वो अब आबदोज के निचले हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हुआ। आबदोज का हंगामी दरवाजा खुला और शाहवेज अंदर दाखिल हुआ। वो हाँप रहा था और उसका जिस्म ठंड से नीला पड़ चुका था। कर्नल अरशद की आवाज वायरलेस पर गूंजी। शाहवेज, क्या तुम महफूज हो? क्या एंटीडोट तुम्हारे पास है? शाहवेज ने बैग से वो कीमती केस निकाला और मुस्कुराया। मिशन मुकम्मल हुआ सर। वायरस का इलाज मेरे हाथ में है। पूरे अमले ने खुशी से नारा बुलंद किया, मगर आबदोज के कप्तान के चेहरे पर परेशानी थी। सर, दुश्मन की दो जंगी कश्तियां हमारा ताकुब कर रही हैं। शाहवेज ने फौराय अपनी जगह छोड़ी और टारपीडो रूम की तरफ भागा। दुश्मन ने आबदोज पर पहला टारपीडो फायर कर दिया था। आबदोज एक जोरदार झटके से लर्ज उठी। शाहवेज ने टारपीडो कंट्रोल संभाला और निशाना लिया। इसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी, जैसे कोई उकाब हो। उसने पहला जवाबी फायर किया, जो दुश्मन की कश्ती के इंजन में लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन की एक कश्ती तबाह हुई। दूसरी कश्ती अब आबदोज के बिल्कुल ऊपर आ चुकी थी। शाहवेज ने गहराई का हिसाब लगाया और दूसरा फायर किया। समंदर की सतह पर एक बड़ा आग का गोला बुलंद हुआ। दुश्मन अब खामोश हो चुका था और खतरा टल गया था। आबदोज अब बहिफाजत पाकिस्तान के पानियों की तरफ बढ़ रही थी। शाहवेज ने अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और बैठ गया। उसने देखा कि एंटीडोट का केस बिल्कुल महफूज है। कल सुबह ये वायरस खत्म हो जाएगा और लोग बच जाएंगे। वो अपनी डायरी निकालने ही वाला था कि उसे एक झटका लगा। आबदोज के अंदर एक छुपा हुआ ट्रैकर बज रहा था। इसका मतलब था कि दुश्मन अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये ट्रैकर शाहवेज के अपने ही बैग के अंदर छुपाया गया था। दुश्मन अब उनकी लोकेशन जान चुका था। नया हमला करीब था। शाहवेज ने महसूस किया कि इस मिशन का अंजाम अभी बाकी है। ऊपर फिजा में अब दुश्मन के लड़ाका तैयारे आ चुके थे। आबदोज को अब सतह पर आना था ताकि एंटीडोट मुंतकिल हो सके, मगर सतह पर आना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। शाहवेज ने फैसला किया कि वो अकेला एक छोटी कश्ती में जाएगा ताकि आबदोज को बचाया जा सके और एंटीडोट भी पहुंचे। ये खुदकुशी है शाहवेज। कप्तान ने उसे रोकना चाहा, मगर औकाबे सरहद के फैसले बदले नहीं जा सकते थे। उसने एंटीडोट लिया और हंगामी अखराज के रास्ते से निकला।
ऊपर आसमान से मिसाइलों की बारिश शुरू हो चुकी थी। दास्तान का ये हिस्सा अब एक होलनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। शाहवेज ने कश्ती का इंजन स्टार्ट किया और लहरों को चीरा। वो अब दुश्मन के तैयारों के लिए एक खुला निशाना था। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग थामा और दूसरे से राइफल। इसे सिर्फ 5 मिनट तक दुश्मन को उलझाए रखना था, ताकि आबदोज बहिफाजत साहिल तक पहुंच सके। एक मिसाइल उसकी कश्ती के बिल्कुल करीब गिरा। कश्ती हवा में अड़ी और शाहवेज एक बार फिर पानी में। मगर उसने एंटीडोट को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। क्या शाहवेज इस आग और खून के खेल से बच? शाहवेज अब बिफरी लहरों के रहम पर था। कश्ती तबाह थी और वो समंदर के बीच था। ऊपर दुश्मन के जहाज मौत की तलाश में थे। शाहवेज ने हिम्मत न हारी। चट्टान थामी, जहर का तोड़ अब भी उसके पास था मियाँ। दुश्मन का हेलीकॉप्टर बिल्कुल ऊपर आ गया, तेज हुआ और रोशनी ने उसे ढूंढ लिया। वहां से रस्सी लटकी और आवाज आई, मियाँ वो डब्बा हमें दे दो, जान बच जाएगी। शाहवेज ने मुस्कुराकर अपनी बंदूक निकाली। उसने चट्टान पर लेटकर निशाना बांधा। पायलट की आंखों में औकाब की चमक थी। एक फायर हुआ जो पिछले पंखे में लगा। दुश्मन का हेलीकॉप्टर समंदर में जा गिरा। फिजा में पाक फिजाइया के जहाज आ गए मियाँ। JF-17 अब फिजा के मुहाफिज बने। दुश्मन के जहाज अब जान बचाकर भागे। शाहवेज ने जेब से इशारा बत्ती निकाली, मियाँ आसमान पर अब सुर्ख रोशनी फैल गई। मियाँ बहरिया की टीम तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। शाहवेज को बहिफाजत जहाज पर ले जाया गया। जहर का तोड़ फौरन ही शहर भेजा गया। मियाँ कुछ ही देर में दवा लेबोरेटरी पहुंच गई। लाखों मासूम जाने अब महफूज थी। मियाँ होश आया तो वो कराची के साहिल पर था। कर्नल अरशद खुद उसके सरहाने खड़े थे। शाहवेज, तुमने आज इंसानियत को बचाया है। वो उठा मगर जिस्म जख्मों से चोर था। मियाँ पूछा, क्या जजीरे की जगह तबाह हो गई? कर्नल ने कहा, वो सब अब राख बन गई। मियाँ मुल्क में जश्न था मगर शाहवेज खामोश था। वो जानता था कि दुश्मन हार नहीं मानता। सांप कुचला गया मगर अंडे बाकी थे। मियाँ वहीं से एक खुफिया पैगाम मिला था। मियाँ दुश्मन का आखिरी मोहरा देओ अब भी छुपा था। उसी शख्स ने जहर बनाने का हुक्म दिया। मियाँ शाहवेज ने डायरी में नई लकीर खींची। अब हदफ वो जड़ और आखिरी शख्स था। मियाँ आराम के बजाय उसने वर्दी तैयार की। मियाँ रात की खामोशी में वो तैयार हो गया। मियाँ अगले दिन देव का सुराग मिल चुका था। मियाँ वो शुमाली बर्फानी वादियों में छुपा है। पहाड़ों के पीछे उसका नया किला है। मियाँ शाहवेज ने राइफल उठाई और सांस लिया। अगला सफर समंदर से बर्फ की तरफ था। मियाँ जहाँ ठंडी हुआ भी जान लेती है। मियाँ उकाब अब एक ऐसे मैदान में उतरेगा जहाँ गोली और ठंड से मुकाबला होगा। मियाँ डायरी में लिखा कि जंग खत्म नहीं हुई, 8वीं किस्त अब नए तजस्सुस पर रुकी। मियाँ शाहवेज का जहाज अब शुमाल को उड़ रहा था। नीचे दौर तक सफेद बर्फ की चादर थी। मियाँ चोटियां जैसे आसमान से बातें करती हूँ। शाहवेज ने बर्फानी लिबास और चश्मा पहना। वहां कदम कदम पर मौत के जाल थे। मियाँ देव का किला पहुंचना बहुत नामकन था। मियाँ मगर शाहवेज के इरादे बहुत बुलंद थे। मियाँ उसने साथियों को आखिरी बात बताई, मियाँ याद रखना, दुश्मन अब अंधा वार करेगा। वो एक गुमनाम चोटी पर उतर गया था। मियाँ बर्फानी हवा ने चेहरे को झुलसा दिया। मियाँ मगर दिल में वतन की आग रोशन थी। मियाँ दूर नजर आने वाले किले को देखा। मियाँ दीवारों पर तोपें और पहरेदार थे। मियाँ शाहवेज ने राइफल छुपाई और आगे बढ़ा। ये मिशन अब सबसे मुश्किल साबित होगा। मियाँ क्या शाहवेज देव को ढेर कर सकेगा मियाँ, या बर्फ का तूफान पर काट देगा? मियाँ दास्तान अब अगली किस्त की मुंतजिर है। मियाँ खून से बर्फ पर फतह लिखी जाएगी। मियाँ किस्त नंबर 8 अब अंजाम को पहुंची है। समंदर फतह हुआ और जहर से निजात मिली, मगर असल खिलाड़ी अब भी महफूज है। मियाँ अगली कड़ी में देखिए बर्फानी मार का। मियाँ शाहवेज और देव अब आमने सामने होंगे। ये हक और बातिल की आखिरी जंग होगी। मियाँ अकाब अब आखिरी उड़ान को तैयार है। मियाँ पाकिस्तान का ये बेटा अब रुकने वाला नहीं। दुआओं के साथ वो आगे बढ़ता जाएगा। नया और होलनाक सस्पेंस